الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. ہم سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو کونین کے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا 15واں سال جو لگ گیا ہے ماشاءاللہ ربیع الاول شریف کا چاند ہوتے ہی اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. کونین کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 22 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کا یہ 1500واں سال باقاعدہ ہے. اس مبارک مہینے میں آج کی انتہائی مبارک متبرک محفل اور شہر لکھنؤ کی انتہائی تقریباً 300 سال سے جہاں پر نماز عیدین ادا کی جا رہی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ، جہاں امامت کا فریضہ انجام دیتے ہیں مقابل عالم دین ہمارے رفیق مقدم عزت مآب علی جناب مولانا خالد رشید صاحب فرمی محلی مدد عالی. یہاں پر باقاعدہ عکس قرآن ایک انتہائی تاریخ ساز منفرد اور انتہائی بے مثل کتاب جو کونین کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کہا جانے والا ایک نعتیہ مجموعہ ہے. چونکہ نبی کی ذات بے مثال ہے، نبی کی صفات بے مثال ہے، نبی کے معجزات بے مثال ہے، نبی کا کلام بے مثال ہے، نبی کا پیام بے مثال ہے، تو شان مصطفیٰ میں کہا جانے والا باقاعدہ پیغام بھی بے مثال ہے. یہ پیغام دینے والی شخصیت ہے ملک ہندوستان کی نامور شخصیت، شہر لکھنؤ کی شہرا ہستی ہمارے رفیق مکرم معروف ادیب ممتاز صحابی بلند پایا محقق عزت مآب علی جناب حضرت الحاج جناب ڈاکٹر سلطان شاکر ہاشمی صاحب. بہت سارے موضوعات پر گفتگو کی جا سکتی ہے مگر چونکہ وقت بھی قلیل ہے اور ہمارے جناب ڈاکٹر صاحب نے بتایا بھی تھا چونکہ جمعے کے روز جب آپ تشریف لائے تھے ہمارے یہاں اور آپ نے دعوت دی تھی آج کی اس علمی ادبی تحقیقی اور ثقافتی محفل کی، تو اس وقت بھی میں سفری پہ جا رہا تھا. خاصا کا مضمون اس میں ہے ایک مضمون کیا مضمون نگار نہیں ہوں، اس کے اندر ایک کوشش کی گئی باقاعدہ طور پر آپ دیکھیے گا اس میں معجزات رسول کی بھی تعداد ملے گی. ان کا کلام میں دیکھتا تھا فجر کی نماز سے قبل باقاعدہ اجلاس سے آنے کے بعد اور باقاعدہ فجر کی نماز سے قبل جو لکھا اور بحمدی تعالیٰ الحمدللہ جو کچھ بھی اس میں لکھا وہ بحالت وضو لکھا ہے. سبحان اللہ کی یہ سب بحالت ہم نے باقاعدہ مصلی بچھانے کے بعد اِصال ثواب کا ایک معمول ہے. والدین کریمین تمام اولیاء کاملین بزرگان دین اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کل اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اِصال ثواب کے بعد باقاعدہ میں لکھتا تھا. جو وقت فجر کی نماز کا پھر وقت ملتا تھا پھر لکھ دیتا تھا باقاعدہ، اس کے بعد سوتا تھا جا کر کے. بہرحال اس میں دیکھیے گا اس میں معجزات سیدنا امام حضرت جناب نواز مصطفیٰ شہید کربلا امام علی مقام سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ان کا سن شہادت ملے گا سن 61 ہجری باقاعدہ. اور داماد مصطفیٰ سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سن شہادت کا حوالہ آ گیا ہے. کلام ایسا لکھا ہے آپ نے ہر اعتبار سے معانی آفرینی اس کے اندر ملے گی، ندرت بھی ملے گی، کلام میں جزالت بھی ملے گی، روانی بھی ملے گی، آمد بھی ملے گی، برجستگی بھی ملے گی. میں عرض کر دوں آپ سے باقاعدہ طور پر تو اس میں باقاعدہ میں عرض کر دوں کہ جس طریقے سے آپ نے جو کلام میں بعض قوافی ایسے اہتمام بڑے عام فہم زبان، ہم تو اہل لکھنؤ ہیں، شہر لکھنؤ، شہر تہذیب، شہر ثقافت، شہر تہذیب نگارہ 22 سے زائد لکھنؤ کے نام ہے. میں عرض کر دوں جس علاقے میں آپ رہتے ہیں نذیر آباد نذیر الدولہ کے نام سے منسوب ہے، امین آباد امین الدولہ، نواب امداد حسین خان نے باقاعدہ 28,000 روپے میں خریدا تھا سلیمان شکو سے. شاہ عالم مغل بادشاہ سلیمان شاہ شکو جن کی باقاعدہ حکومت سلیمان شاہ شکو کی حکومت دلی میں تھی. میں عرض کر دوں کے صاحبزادے سلیمان شکو نے باقاعدہ یہ ان کی بیوی نے یہ خرچ بیچ دیا تھا نواب امداد حسین خان عرف امین الدولہ، انہی کا لقب، انہی کے نام سے امین آباد باقاعدہ جھنڈے والا پار 1928 میں یہ مشہور ہوا. میں عرض کر دوں آپ سے ورنہ امین الدولہ کہا جاتا تھا. اور وہاں بلا
प्रहलाद सिंह लोधी ने पहली मरतबा झंडा लहराया था 1928 में। अंग्रेजों ने गोली मार करके दरख्त पे पहला झंडा लहराया था, गोली मार के गिरा दिया था बाकायदा। उस इलाके से आपका ताल्लुक है, कदीम तरीन नाम है। डॉक्टर पहला लफ्ज लगा तो फौरन जहन गया। यूनान के आज से तकरीबन 2400 साल पहले ही वाज द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड, पहला डॉक्टर बाकायदा यूनान का। बाकायदा मेरे जहन में आ गया, आज यहाँ डॉक्टर जो ओथ लेता है तो उन्हीं का नाम लेकर के हिप्पोक्रेटिक उनका नाम है बाकायदा उनका लेगा। उसके बाद लफ्ज आगे आपको मिलेगा सुल्तान, तो सुल्तान के जो कुरान मजीद में लफ्ज जहन जाता, कुरान मजीद में 86,700 अल्फाज है, उसमें लफ्ज सुल्तान न बादशाह के माने में इस्तेमाल हुआ, न हाकिम के माने में, न हुक्मरान के माने में बाकायदा इस्तेमाल हुआ, उसमें दलील और बुरहान के माने में इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज सुल्तान दलील और बुरहान के माने में इस्तेमाल हुआ है, तो बाकायदा इन्होंने दलील के साथ कलाम इसके अंदर पेश किया। सुभान अल्लाह कह दीजिए, यानी बुरहान मौजूद है बाकायदा, तो सबूत कतईया के साथ आप रफ़अना लका ज़िक्र की तशरीह देखिएगा, इसके अंदर सूरतुन नज्म के हवाले देखिएगा। जानते हैं ये तमामी अहबाब जानते हैं बाकायदा मशहूरियत जनाब प्रोफेसर वसीम अख्तर साहब के तहाइफ पहुँचते रहते हैं। ये हमारी तसाफुली कह लीजिए कि आपको फ़ोन नहीं कर पाता हूँ, उस पर शुक्रिया तक नहीं अदा कर पाता। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपकी तरक्यात मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ कि मुल्क हिंदुस्तान में तालीमी इदारों की कमी नहीं है माशाअल्लाह। 15 लाख से ज़ायद स्कूल है हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, बड़ा मुल्क है, 7वां दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है। मैं अर्ज़ करता हूँ आपसे रकबे के एतबार से 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ डॉक्टर अखिलेश दास साहब आजहानी, उन्होंने फोन करके बाकायदा रकबा दोबारा दरियाफ्त किया था। तो मैंने अर्ज किया था इतना बड़ा मुल्क हिंदुस्तान, आबादी में हमने चीन को पीछे कर दिया है। मैं अर्ज करता हूँ आपसे ऐसे मुल्क हिंदुस्तान में 15 लाख स्कूल का होना बाकायदा तालीम की दावत की तरफ आपकी तवज्जो को मुनक़िब कराता है। उसी में 45,000 इंटर कॉलेजेस और उन क्या अभी आपने जो प्रोग्राम किया था खाक साहब को बुलाया था, मैं पहुंचा था वहां, तो मैं अर्ज करता हूँ 1100 यूनिवर्सिटीज से भरा हुआ है हमारा मुल्क हिंदुस्तान। मैं अर्ज करता हूँ आपसे बाकायदा जनाबे मसूदी साहब तशरीफ फरमाए, इनकी भी जिंदगी का ये 62वीं बरसात चल रही है। 1 अगस्त को गालिबान आपका रिटायरमेंट हुआ था। मैं अर्ज करता हूँ आपसे और जनाबे हमारे सुल्तान शाकिर हाशमी साहब की जिंदगी का ये मौसम बरसात 69वां है। घर आए कहने लगे अब चल चलाओ सा वक्त है बाकायदा। तो हमारे भाई साहब वसीम ताबिश साहब तशरीफ फरमाए, हमें लखनऊ यूनिवर्सिटी में उनका ऐसी बात मत करिए, इसका तो इल्म ही नहीं है किसी को बाकायदा, तो लिहाजा आप इस तरफ ख्याल भी ना लाइए। मैं अर्ज कर दूँ आपसे मशरिक़ से बेज़ार न मग़रिब से हज़र कर इक़बाल कहता हूँ 1938 में इंतकाल है इक़बाल का। वो मशरिक़ से बेज़ार न मग़रिब से हज़र कर, फितरत का तकाज़ा है कि हर शब को सहर कर, फितरत का तकाज़ा है कि हर शब को सहर कर। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था आपसे ज़ूद गोई का बाकायदा जो फन नजर आता है, ज़ूद गोई में तो नाम आता है जोश मलिया वाली शबीर हसन खां जोश 1892 की पैदाइश है। मैं अर्ज करता हूँ आपसे वो हिंदुस्तान से चले गए, जवाहरलाल नेहरू साहब बहुत रोक रहे थे, किसी को उनका जाना पसंद भी नहीं आया, वो मकाम भी नहीं मिला, वो जलवा भी उनको वहाँ पर नहीं मिल पाया। बहरहाल मैं अर्ज कर दूँ उनकी ज़ूद गोई यानी फिर बदी कलाम कहना बहुत कसरत के साथ अशआर उनके मुँह के कलम पर आया करते थे। मैं अर्ज करता हूँ आपसे जिसे शकील बदायूनी का 1970 में इंतकाल, बहुत जल्दी जल्दी बाकायदा अशआर कहा करते थे, मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जुस्तजू मदीना। किसी ने कहा वो फिल्मी शायरी करते थे, मैंने अर्ज किया मैदान महशर में खालिक़ कायनात कामिलुज़्ज़ात शान करीमी अपनी शान करीमी शान रहीमी से जब उनका हिसाब करेगा, शकील बदायूनी मौलाना अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह के साहबजादे हैं, आलिम दीन के बेटे, उनकी बख्शिश के लिए इतना मिसरा काफी है जो शान मुस्तफा में मिसरा कहा था, मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जुस्तजू मदीना, ये मिसरा उनको जन्नतुल फिरदौस में दाखिला दिला देगा। जनाब जगर मुरादाबादी की सारी जिंदगी की शराब नोशी अल्लाह रब्बुल आलमीन बाकायदा इस शेर में माफ कर देता है बाकायदा। बहुत आए दुनिया में पाको मुकर्रम बनकर, कोई आया न मगर रहमते आलम बनकर। ज़ूद गोई के ऊपर हज़रत मुहानी 1951 में उनका इंतकाल है, इंकलाब जिंदाबाद उन्होंने 1904 में बाकायदा तौर पे दिया था। 1940 में उर्दू मुअल्ला निकाला, खद्दर का पहला कपड़ा 1907 में पहनने वाले हज़रत मुहानी थे। फजलुल हसन हज़रत मौलवी अम्मा साहब के बाद रहमतुल्लाह अलैह वहाँ आराम फरमा 1951 में उनका इंतकाल हुआ। मैं अर्ज़ करूँ 80,000 अशआर उनके हैं जो उस्मानियाबाद में 2 लाख के करीब अशआर कहे। जनाब सुल्तान शाकिर हाशमी साहब ने बहुत कम वक्त में इसके अंदर नातिया कलाम हमद भी देखेंगे आप बाकायदा, नज़्म भी देखेंगे और बाकायदा तौर पर इसके अंदर मनक़बत के भी अशआर देखेंगे। बस मैं चंद कलिमात के साथ इजाजत लूंगा आपसे कि शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना, नवासा मुस्तफा शहीद करबला सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर आपने भी नज़्म की है, नज़्म कही है बाकायदा तौर पर। मैं अर्ज़ करूँ आपसे मौलाना हज़रत मौलाना उस्तादुल उलमा इज्जत माल आली जनाब हमारे महसूल करम फरमा जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल अली साहब फारूकी दामत बरकातहू माशाअल्लाह, बुलंद पाया सहाफ़ी और बाकायदा खतीब और मुअर्रिख़ इस्लाम तमाम चीज़ें बाकायदा रखते हैं। आपने अपनी जब किताब पेश की उस किताब पर भी मैंने सोचा था चंद कलिमात अर्ज़ करूँगा और फ़ोन पे बात और पाबंदी से मेरे पास बाकायदा आपका रिसाला अल बद्र आता है 1973 में गालिबन निकला था। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके
आमद को कबूल फरमाए। इन लफ्ज़ों के साथ मुझे इजाज़त दे दीजिए और 1500वां साल लग गया वलादत रसूल को। इस्लामिया कॉलेज भी पहुँचिएगा इंशाअल्लाह। उस शहर में इंशाअल्लाह 5 किताबात होंगे। 11 बजे इस्लामिया कॉलेज पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। वहाँ शान मुस्तफ़ा भी बयान होगी, शान सहाबा। मैंने 2.25 लाख सहाबा किराम का तज़किरा भी इसमें कर दिया है। उन तमाम सहाबा किराम में 100 सुभान अल्लाह कहिएगा इस बात पर। मैं अर्ज़ करूँ आपसे 172 असहाबे रसूल ने शान मुस्तफ़ा में नातिया कलाम कहा है। 172 सहाबा किराम में से 160 सहाबा किराम 12 सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना बाकायदा शान रसूल में कलाम कहा है। चचा अबू तालिब में भी कलाम का नवासे रसूल सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दादा जान चचा अबू तालिब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जान। मैं अर्ज़ करूँ आपसे इसी में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का हवाला मिलेगा। अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु, काब बिन ज़ुहैर रज़ियल्लाहु अन्हु और हस्सान रसूल हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु। हमने उसमें संग वफ़ात पेश किया हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु का सन 55 हिजरी। मैं अर्ज़ करूँ आपसे बहरहाल शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला के ज़माने के बलद बाया मुहद्दिस और बर्र सगीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश को मिला के हिंदुस्तान को मिला के बर्र सगीर कहलाता है। यहाँ की सबसे पहली सीरत रसूल लिखने वाले शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि बादशाह शाहजहां जिनसे मशवरा करते थे बाकायदा। उनकी मदारिजुन नुबुव्वा वो पहली किताब थी जो सीरत मुस्तफ़ा में बर्र सगीर में मुल्क हिंदुस्तान में लिखी गई। उसके हवाले से मैंने इसके अंदर जिक्र किया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 9 सहाबा किराम के नाम इसके अंदर दर्ज हैं। बस इन कलिमात के साथ मुझे इजाजत दीजिए। और शाहिद खुशनवा भी है जनाब सुल्तान शाकिर हाशमी, शाहिद खुशनवा सुल्तान शाकिर हाशमी, गुलाम मुस्तफ़ा सुल्तान शाकिर हाशमी, आशिक़ औलिया सुल्तान शाकिर हाशमी। ये कोई कलाम नहीं, मंजूम कलाम नहीं, तो अल्लाह ताला ज़हन में डालता है। तो मैं अर्ज़ किए जा रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद मुझे कहीं और अल्लाह का मैं बावजूद हूँ इस वक्त अल्लाह का शुक्र एहसान है ज़ोहर की नफिल नहीं अदा कर सका और यहाँ पे वक्त पर पहुँचना भी था। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, मैं अर्ज़ करके कुछ भी याद नहीं होता, कुछ भी बाकायदा पहले से नहीं होता। ये तो मोजिज़ाते रसूल में से मोजिज़ा है कि नबी की शान में जो कुछ भी आप कहेंगे अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाएगा। खाली एक मुल्क हिंदुस्तान की अकॉर्डिंग टू गूगल ये सब सारी इंफॉर्मेशन गूगल के जरिए बनी जा रही है। वो वॉशिंगटन के अंदर बाकायदा कांग्रेस यूनिवर्सिटी जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी 16 करोड़ 20 लाख किताबों का ज़ख़ीरा, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी लंदन यूनिवर्सिटी 15 लाख किताबों का ज़ख़ीरा। किताबों से रिश्ता तो टूट गया। किताब 1973 में मार्टिन कूपर ने मोबाइल इसलिए नहीं बनाया था बाकायदा। व्हाट्सएप कब आया? मैं कहता हूँ व्हाट्सएप 2009 में, व्हाट्सएप कब आया? 2009 में। और यूट्यूब कब आया? 2005 में। 3 दोस्तों ने अल्लाह के लिए आज अपना दिमाग इतना अदब पर दिमाग ना मुल्क हिंदुस्तान की मसाइल पर दिमाग ना मिल्ली मसाइल पर दिमाग, इनकी ग़ीबत, उन पर इल्ज़ाम तराशी, उन पर तोहमत तराशी, बेजा तनकीद और इनकी हौसला शिकनी और उनको बदनाम और उन पर इत्तेहाम, ये सारी बातों में लगा हुआ। थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो? इकबाल कहता है थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो, हाथ पर एक शख्स काम करता है, तुम्हारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता है। अकबर इलाहाबादी 1927 में इंतकाल उनका। अकबर इलाहाबादी बाकायदा तौर पे तुम्हारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता है, फकत इतना समझ लो कहने और सुनने वाले में। बहरहाल मैं अर्ज़ कर दूं आपसे यूट्यूब 3 दोस्तों ने अल्लाह के लिए दिमाग का इस्तेमाल किया। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे जावेद करीम जर्मनी के, स्टीव चेन मैं अर्ज़ कर दूं आपसे चाइना के, ताइवान के, और मैं अर्ज़ कर दूं आपसे बाकायदा तौर पे अमेरिका के 3 दोस्तों ने मिलकर काम किया। 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब लॉन्च कर दिया। आज 80 करोड़ से ज़ायद वीडियोस हैं। हदीस रसूल बुखारी शरीफ की हदीस को कौन पढ़ रहा है मोबाइल के सामने? 7,275 हदीसें बुखारी शरीफ में, 7,425 हदीसें बाकायदा बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ के अंदर, मिशकात शरीफ में 4,884 हदीसें, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में 21,000 रवाया। यहाँ जस्टिस साहब तशरीफ फरमा है। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे मुल्क हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो बाकायदा तौर पे 2 साल 11 महीने, मैं अर्ज़ कर 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखा गया, 1,46,000 हुरूफ से सजा हुआ है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त के मौके बने हवाले पेश किए। कौन इनको पढ़ रहा है? ना हमें मसाइल मालूम, ना मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी मालूम, ना उलमाए कराम का किरदार मालूम, उलमाए फरंगी महल का क्या किरदार, 1894 में नज़रुल उलमा का क्या किरदार, 1866 में दारुल देवबंद कायम हुआ उसका क्या किरदार, 1877 में सर सैयद अहमद खां की यूनिवर्सिटी जो उनके सामने बन नहीं पाई थी, 1920 में बाकायदा यूनिवर्सिटी का मकाम उसको हासिल हुआ। हम ना प्रोफेसर से वाकिफ, ना लेक्चरर से वाकिफ, ना डॉक्टर को जाने, ना इंजीनियर को जाने, ना थिंकर को जाने, ना मास्टर को जाने, ना थिंकर, ना टीचर को जाने, ना आलिम को पहचाने, ना मुफ्ती को पहचाने, ना खतीब को पहचाने, ना अदीब को पहचाने, ना शायर को पहचाने, ना मुहद्दिस को पहचाने, ना मुदक्किर को पहचाने, और ना बाकायदा तौर पे अहले इल्म हज़रात को पहचाने। यहाँ काम किया है आपने बाकायदा सुल्तान शाकिर हाशमी साहब ने। तो शहर मक्का बेमिसाल, इजाजत दीजिए, शहर मक्का बेमिसाल, बहुत रहा अच्छे कुरान तक अक्स लफ्ज़ अक्स के मैंने इसके अंदर 11 मायने बयान किए हैं।
اور ہم یہ آسیہ کا حوالہ دیا سید احمد دہلوی صاحب نے باقاعدہ طور پہ 1908 میں کتاب لکھی تھی فرق عربیہ، اس کے حوالے سے میں نے عکس قرآن، لفظ قرآن دوسرا لفظ مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، عکس مضاف ہے، عربی قواعد و عربی گرامر جانتے ہو جانتے، اور قرآن مضاف الیہ ہے، قرآن کا عکس آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ ناطق قرآن ہے، قرآن ناطق ہے، بولتا قرآن ہے، اور آپ کا عمل شریف باقاعدہ طور پہ خاموش قرآن ہے، عکس ہے آپ کا عمل مقدسہ، اور نعت مصطفیٰ کہنا قربت الہی، قربت مصطفی رضا الہی کا ذریعہ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، شہر مکہ سبحان اللہ کا ریاض کیجیے گا، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال، اماں فاطمہ بے مثال، شہید کربلا نواز مصطفیٰ، شہید کربلا نواز مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال، نواز رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ بے مثال، اور خلیفہ مصطفیٰ صدیق حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، خلیفہ ثانی میں برکت کے طور خلافہ راشدین کے نام لے رہا ہوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، خلیفہ ثالث سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے شوہر حضرت عثمان غنی، جن کو بڑی بے دردی سے 82 سال کی ضعیفی کے عالم میں مسجد نبوی شریف میں عین جمعے کے دن شہید کر دیا تھا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اور حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ماہ رمضان میں شہید کیا گیا تھا، تو میں عرض کرتا اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بے مثال، اما خدیجہ بے مثال، اما عائشہ بے مثال، شہر مکہ